मैम पढ़ाओ ना पढ़ा पढ़ा पछू पढ़ा कहीं जगह अच्छी बस पढ़ा आउ कहीं आउ गोटे बेंच थे आउ पछे बस जाई नहीं नुआ विषय ने सॉरी मथुरा मंगल सर जाइए ना पूरा मथुरा मंगल सरला मला जन्ह सरला नंदिकेश्वरी राजहंस दीटा आहरी कोटा पढ़ नंदिकेश्वरी राजहंसटा तो एकांकिकाटा पढ़ी निजे पढ़ी ना मला सॉरी नंदिकेश्वरी आ व्याकरण ए दुटा आगे सारदबा लास्ट को आस लास्ट को पढ़ेबा सेटा जदि टाइम हैला पढ़ेबा नले नहीं किसी असुविधा नहीं छोटटे बड़टे हाँ ये बहुत बड़ ग्रामर किसी पढ़ाई वाक्य पढ़ा जाइए वाक्य सर जाइए छंदटा अच्छी नहीं कोटा कहल ये जो बड़ बड़ पद गुड़ा देछि माने जो गीत गुड़ाक ताको न घोषले तुम एग्जांपल जा लिखि दे पारिबो अलग एग्जांपल भी दे पारिबो खाली बुझिबा पई कि आउ को छंद रे को प्रकार लिखा जाए तो बुझिया पई एते दरकार नहीं घोषिया हाउ बाहर कर नंदिकेश्वरीटा बाहर कर तापर टिके पढ़े कि मझे कोदिन गोटे ग्रामर पढ़ेदेवा कहीं ये बड़ चैप्टरटा ना आपको सरला ग्रामरटा बाकी रही आज पढ़ेबा मझे कोदिन गोटे मिसईकी ग्रामरटा पढ़ेदेवा ता भितर है ना लास्ट को जो गोटे सबसन रहीटा को एकांकिकाटा तुम पढ़ुव डेली डेली टिके टिके आमर काव्य सरीगले एकांकिकाटा पढ़ेबा काव्यटा बाहर करो नंदिकेश्वरी राधानाथ राय द्वारा लिखित नंदिकेश्वरी गोटे ऐतिहासिक काव्य एटा है नंदिकेश्वरी गोटे ऐतिहासिक काव्य पुराना राजा राजुड़ा विषय रे आगुरु उत्कलर जो राज्य शासन राजा राजुड़ा शासन थिला ता ऊपर नहीं पूरा ऐतिह्य कला स्थापत्य भरपूर होती ता सहित ओडिशार विभिन्न जगह गुड़िकर कौ जगह कौथि प्रसिद्ध से सब बहुत सुंदर भाव में वर्णना करछन्ते कवि। तो प्रथमे देखिबा से लिखिछन्ते जो काव्यटी किए लिखिछन्ति राधानाथ राय लिखिछन्ति नंदिकेश्वरी काव्य। प्रथमे जानिबा राधानाथ राय किए तापरे नंदिकेश्वरी काव्यटा कहीं कहा उपरे लिखिछन्ति। राधानाथ राय 1848 मसीह जन्मग्रहण करके 1908 रे देहत्याग करथिले। कविवर राधानाथ राय 1848 ख्रीष्टाब्द सेप्टेम्बर 28 तारिख रे कोठी जन्मग्रहण करथिले? बालेश्वर जिल्लार केदारपुर ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। मन रखिबो को मसीह रे जन्मग्रहण करथिले के आउ कोठी जन्मग्रहण करथिले? तेबे 1848 मसीह जन्मग्रहण करते सॉरी को मास सेप्टेम्बर मास 28 तारिख रे बालेश्वर केदारपुर रे से जन्मग्रहण करथिले। तांको पितांको नाम थिला सुंदर नारायण राय।
ଆଉ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶ୍ରୀମତୀ ତାରିଣୀ ଦାସୀ। ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସୁନ୍ଦର ନାରାୟଣ ରାୟ, ମା ନାଁ ଥିଲା ତାରିଣୀ ଦାସୀ। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମାତୃହୀନ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲେ ସେ କିଏ? ରାଧାନାଥ ରାୟ 5 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ମରିଯାଇଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ମା ମରିଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳୁ ସେ ମାତୃହୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିମାତା ଶ୍ରୀମତୀ ରୂପ ଦାସୀଙ୍କ ଆଦର ଯତ୍ନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିମାତା ଯିଏ ଗୋଟେ ଛୁଆର ମା ମରିଗଲେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ ମଦର ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ରଖିଥାନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ସାବତ ମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ବିମାତା ମଧ୍ୟ ଡାକନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଯିଏକି ପିଲାକୁ ମା ବଦଳରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇକି ତାକୁ ବଡ଼ କରିଥାନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ? ରୂପ ଦାସୀ। ସେ ଅତି ଆଦର ଯତ୍ନରେ ପିଲାକୁ ପାଳିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଧାନାଥ ରାୟ 5 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲେ। ରାଧାନାଥ ଜଣେ ମେଧାବୀ ପ୍ରତିଭାବାନ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। 1863 ମସିହାରେ ସେ କୃତିତ୍ୱର ସହ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରି କଲିକତାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ FA ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କହିଲେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା ହେଲା। ଆମର ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ ଯାହା, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ ସେୟା। ତ ସେ କେବେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲେ? 1863 ମସିହାରେ ସେ ଅତି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିକି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ବା ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଲିକତାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ FA ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ମାଟ୍ରିକ ପରେ ଯୋଉଟା +2 କହୁଛେ, ଦ୍ୱାଦଶ, ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ସେଥିରେ ସେ ପଢିଥିଲେ। ସେଟା କୋଉଠି? ଯାଇକି ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ। ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜଟା କୋଉଠି ଥିଲା? କଲିକତାରେ ଥିଲା। କଲିକତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ସେ FA ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଯୋଗୁଁ ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଆଶା ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କଲିକତା ଗଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି, ସେ ଜଳବାୟୁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ କରିକି ସେ ସେତିକି ପାଠରେ ଯାଇକି ଆଡମିସନ କରି ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଠ ପଢିଲେ, ତାପରେ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ ରହିଲାନି। ତେଣୁକରି ସେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ନିଜର ଜନ୍ମ ମାଟି। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ମାନେ ଫେରିବା, ପୁଣି ଥରେ ସେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ସ୍କୁଲ ବିଭାଗର ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ସେ ପାଠ ପଢେଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି? ନା ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢେଇଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଜୀବିକା ଅକୁପେସନ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଟିଚର। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେଇ ଶିକ୍ଷକରେ ରହି 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 ସେଇ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହେଇଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେଇଯାଇଥିଲା। କ'ଣ? ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ବଳରେ ଭଲ କାମ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିକି ଠିକ ଭାବରେ ତୁଲାଇକି ସେ ସେଇ ସ୍କୁଲ ବିଭାଗର ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ସ୍ତରରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ସେଇ ସ୍କୁଲ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର, ତ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ସେ ପାଇକି ଶେଷରେ ଅବସର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରିଟାୟାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ। ରାଧାନାଥ ପ୍ରଥମେ ବଙ୍ଗଳାରେ କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ରଚନା କରିନଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ ରଚନା କରୁଥିଲେ? ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାରେ, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରେ ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ରଚନା କରିବାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଜଣେ ଥିଲେ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ, ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବା ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କଲେ। ଠିକ ସେମିତି ରାଧାନାଥ ରାୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବଙ୍ଗଳାରେ ତାଙ୍କର କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ବା ଭୂଦେବ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ କଲେ ଯେମିତି ଚାଟାର୍ଜୀ, ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ କଲେ ସେମିତି ମୁଖାର୍ଜୀକୁ ବୁଝେଇବା ହେଲା। ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଓଡ଼ିଆରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ରଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରାଧାନାଥ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ପ୍ରକୃତି କବି, ପ୍ରଣୟ କବି, ଜୀବନବାଦୀ କବି ଓ ଜାତୀୟ ଚେତନାର କବି। ସେ ଖାଲି ଯେ ଗୋଟେ କିଛି କବି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ନେଇକି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ନେଇଥାନ୍ତି। କିଏ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଲେଖନ୍ତି, କିଏ ସମସାମୟିକ ସମାଜ ଉପରେ ଲେଖନ୍ତି, କିଏ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଉପରେ ଲେଖନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ
प्रति माने समय अनुसार प्रति समय अलग अलग साहित्यिक माने अलग अलग बाट देकी गति करछन्ति किंतु राधानाथ थिले से कोन करथिले प्रकृति कवि प्रथमतः प्रकृतिर जो शोभा सुंदरता को लेकिन बहुत रचना करछन्ति जेमति आमे तांकर गोटे काव्य पढ़ीथिले चिलिका काव्य स्कूल लेवल ले बोध तार किछि थिबो चिलिका रे केते सुंदर भाबरे से चिलिका रे जो परिवेश को ता प्रकृति को केते सुंदर भाबरे वर्णना करछन्ति तो सही भाई बहुत गुड़ाए प्रकृतिर छवि प्रति छवि नहीं कि अति सुंदर भाव से काव्य कविता लिखिथिले प्रणयर कवि थिले प्रेम प्रणयर कवि मध्य थिले बहुत सुंदर सुंदर प्रणय कविता गुड़िक प्रणय काव्य गुड़िक लिखिचंती जेमिति कि तुमर केदार गौरी हैला दुईटा हिरो हिरोइन मानकर नायक नायिका थे प्रणय धर्मी काव्य मध्य लिखिं जीवनवादी कवि जीवन को लेकिना मनीष जीवन को लेकिना बहुत सुंदर सुंदर काव्य कविता लिखिं आ जातीयता जातीय चेतना आमर जातीय धर्मी कविता गुड़िक काव्य गुड़िक लिखिं जहाँ जाति को समर्पण निज जन्मभूमि को समर्पण ताको नहीं बहुत गुड़े कविता से लिखिं जमीती कि तुम दरबार गोटे काव्य अच्छी एक जातीयतावादी जातीय चेतनार काव्यटे जो थे कि राजा राजड़ा मान शासन केमती थिला परवर्ती समय जो लोक मैंने शासन कले केमिति प्रजा मान लुंठन कले ताकू नहीं सेटा थिले तांकर जातीय स्तरीय बा तांकर जातीय चेतनार काव्यटे थिला तो जड़े कवि भाव में राधानाथ राय प्रसिद्धि लाभ करते साहित्यर विभिन्न विभाग में लेखनी चालना करी असाधारण दक्षतार परिचय प्रदान करते सी ना करते कौन जड़े सुंदर कवि भाव में उच्च कोटीर कवि भाव में ना करते सत किंतु से खाली कवि कविता बा काव्य लिखु ना छाड़ी अनेक से माने साहित्यर बहुत दिगरे जाते जमीती कि तुम काव्य सॉरी काव्य कविता गला कवि जमी से लेखा तुम निबंध प्रबंध एकांकिका नाटक एमती सबू उपन्यास बहुत गुड़े लेखा से लिखुले विभिन्न विभाग में साहित्य विभिन्न प्रकार विभाग सबू विभाग में से लेखनी चालना करी अति दक्षतार सहित से निजको परिचित कराई समग्र ओडिया समेत पूरा भारत वर्ष रे तांकर कवि प्रतिभार अजस्र स्वीकृति अच्छी कौन कौन सुंदर सुंदर काव्य एवं कविता ता भीतर काव्य अच्छी केदार गौरी चंद्रभागा नंदिकेश्वरी उषा पार्वती चिलिका महायात्रा दरबार जजाति केसरी इत्यादि रचना सबू देखा मिले ए सबू तांकर अति श्रेष्ठ उच्च कोटीर सुनामधन्य काव्य गुड़िक गद्य रचना गद्य आम पढ़ीचे से जड़े कवि भाव में परिचित होते सत किंतु केवल जे खाली काव्य कविता लिखुले ता नुहे गद्य साहित्य से रचना कर गद्य साहित्य कौन अच्छी इटालीय जुबा गोटे गद्य साहित्य उपन्यास कौन अच्छी उपन्यास और विवेकी प्रबंध तांकर उल्लेखयोग्य सृष्टि इटालीय जुबा है तार गद्य साहित्य जोटा कौन उपन्यास जीव गद्य आउ पद्य साहित्य कहले कौन बुझे पद्य साहित्य कहले ताधरे तुम काव्य कविता चौपदी चौतीसा ए सब गुड़ाक षोडशा ए सब जीव तुम पद्य साहित्य गद्य साहित्य कौन जीव उपन्यास प्रबंध गल्प एकांकिका नाटक ए सब जीव तुम गद्य साहित्य चंपू पद्य साहित्य गीत भली न थाए ना सेटा ना कि चंपुड़ा गीत भली न था चंपू षोडशा कोइली एटा सब विभिन्न साहित्य गोटे गोटे पद्य साहित्य गोटे गोटे विभाग रचना करिवार गोटे गोटे प्रकार शैली तो तेबे से काव्य तो बहुत गुड़ाए भल भल काव्य लिखिं तापर इटालीय जुवा गोटे उपन्यास लिखिं एवं विवेकी है प्रबंध तांकर जोटा को कि आमे प्रथम ओडिया प्रबंध भाव में मान्यता दे था ना कि आम जदि आम पढ़ीचे आगर प्रथम ओडिया प्रबंध कोटा ना राधानाथ रायकर विवेकी प्रबंधटा अच्छी प्रथम ओडिया प्रबंध प्रथम ओडिया गल्प कोटा रेवती कार फकीर मोहन सेनापति रेवती है प्रथम ओडिया गल्प प्रथम ओडिया उपन्यास है फकीर मोहन सेनापति प्रथम ओडिया उपन्यास उमेश चंद्र सरकार पद्ममाली उपन्यासटा उमेश चंद्र सरकार पद्ममाली उपन्यासटा जोटा कि ओडिया साहित्यर प्रथम उपन्यास किंतु आम आउ गोटे केबे गोटे डिस्कशन करथिले बोधे भीमा भोईया विषय रे नहीं सी किंतु सी गोटे कौन उपन्यास किंतु सेटा जनजाति संप्रदायर प्रथम ओडिया उपन्यास है गोपाल वल्लभ सेटा प्रथम उपन्यास थिला किंतु से उपन्यास रे प्रथम है पद्ममाली जनजाति संप्रदायर उपन्यास रे प्रथम है भीमा भोईया है
ହଉ ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଆମେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ। ତେବେ ରାଧାନାଥ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆହରଣ କରି ଉତ୍କଳୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସମୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥ କରିଥିଲେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଆମେ ଶ୍ରୀ କହିଲେ ଧନ, ଧନ ବୃଦ୍ଧି, ଏଇଠି ତ ଧନ ବୃଦ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ଅଳଙ୍କାର ନୁହେଁ, ଏଇଠି ଧନ ବୃଦ୍ଧି କହିଲେ ତାଙ୍କର ଲେଖାର ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ସାହିତ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆହରଣ କରି ଉତ୍କଳୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସମୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? वेस्टर्न, हाँ वेस्टर्न साहित्य बा विश्वर पश्चिम गोलार्धरे बा पश्चिम महादेशरे थिबा देश महादेश गोटे पश्चिम गोलार्धरे थिबा हमर जो मान जदि आमे जो ग्लोब्स को देखिबा तार ग्लोब रो पश्चिम पटरे पश्चिम गोलार्धरे थिबा समग्र देश महादेश सेई गुडा वेस्टर्न कंट्री रे जीवो। हां तो एटा हला पश्चिम पाश्चात्य कहले वेस्टर्न या फिर आउ गोटे अर्थरे जदि देखिबा आमे प्राच्य पाश्चात्य जदि कहबा बा पुरुणा आउ नवीकरण जोटा नुआ मध्य। तेणु सी कोन करथिले विश्वर पश्चिम माने वेस्टर्न साहित्य को आनिकी कले कौन साहित्य आहरण करी किछिटा ज्ञान उपार्जन आहरण करवा संग्रह करवा बा ज्ञान उपार्जन करवा। से जितेबाला ओडिया साहित्य लिखिबा आरंभ करथिले सी वेस्टर्न साहित्य को पढ़ी सेतुरु किछि ज्ञान आहरण करी ताको आनिकिना से कौन करथिले करी उत्कलीय परिप्रेक्षी बा उत्कलीय प्रसंग रे उत्कलर पई जो लेखा गुड़िक लिखिचंती उत्कल रे जो शोभा गुड़िक सुंदरता गुड़िक को नै किना से काव्य रचना करथिले ता प्रसंग रे अति सुंदर भागमरे समीकरण करछन्ती बा सदृशीकरण करिबा। समीकरण माने सदृशीकरण सदृशता पार्थक्य सेठू साहित्य को पढ़िले ता माने वेस्टर्न साहित्य को पढ़ी बुझी तादरु किछि इंपोर्टेंट कथा को आड़िकी ज्ञान आहरण करिकी उत्कलीय साहित्य ताको जोड़िकी अति सुंदर भाव से तांकर साहित्य गुड़िक रचना हाँ आधुनिक फकीरमोहन राधानाथ प्रथम लिखा आरंभ किए कला से समय जो समसामयिक कवि थे ठीक फकीरमोहन सेनापति आउ राधानाथ राय समसामयिक कवि थिले पाखापाखि जितेबाला तुमर किए राधानाथ राय लिखा आरंभ कले जस्ट तार पाखापाखि अल्प समय भितर फकीरमोहन सेनापति लिखा आरंभ करते किंतु फकीरमोहन सेनापति जो लेखा गुड़िक लिखिते तत्कालीन समय तत्कालीन समय समाज घटुवा घटना गुड़िक आणिकी से साहित्य रचना करते सेतेबेले बेसी भूमिका नुहे जे गद्य साहित्य अलग पद्य साहित्य अलग भूमिका दि जाउथला जे हेले भी गोटे गद्य साहित्य और पद्य साहित्य भितर पद्य साहित्य काव्य कवितार अधिक मान्यता थिला प्रथम द्वितीयतः राधानाथ राय जे खाली सबु किछि को वेस्टर्न को आनिकी लेखा लिखि ना से कौन कहले जे तांकर श्री बुद्धि तांकर लेखार श्री वृद्धि पाई कि तांकर लेखा को आडे उन्नत मानर करबा पाई कि से कौन करले पाश्चात्य साहित्य को पढ़ी बुझी तादर किछि ज्ञान संग्रह करले ताको आनिकी अनुवाद करि नथिले से सेतरो किछिटा ज्ञान जिमिति एग्जांपल हैला आमे इंग्लिश भाषा ओडिया भाषा तो इंग्लिश रो लिटरेचर आ ओडिया रो लिटरेचर तमे गोटे ओडिया रे गोटे सुंदर कविताटे हो बा गपटे हो लिखिया को चाहूच तमे ओडिया भाषा रे किछि जानिछ बहुत जिंस तमे ताको छंदी छंदी लिखि परिबो किंतु तमें जदि गोटे इंग्लिश कविर इंग्लिश जे स्टोरीटे पढ़ीच इंग्लिश स्टोरी पढ़ल तांकर जो भावटा लिखबार शैली भाव आ तम भाव ताकू पढ़ल ताठू किछि ज्ञान आहरण कल तापर तमें निजर ज्ञान मिसेकी जो से साहित्यटा तुम बाहर निहाती भाव में मोर जदि खाली मो ओडिया प्रसंग में जी जानी से लिखी तम साहित्यटा उन्नत मानर निहाती भाव में हम तुम 5टा लैंग्वेज पढ़ीच विभिन्न प्रकार भाषा विभिन्न प्रकार शैली लेखा शिखीच मु केवल गोटे प्रकार शिखी तेणु जहाँ भी हेले तुम साहित्य शैलीटा टिके अधिका हम टिके उन्नत मानर हम आउ हाँ से कॉपी करदे से नुह सी के कॉपी करना से जोटा कौच अनुवाद करवा कहुए तुम साहित्य लिखीच पाश्चात्य साहित्य को आनिक अनुवाद करवा ओडिया भाषा उत्कलिया भाषा अनुवाद करवा ता अलग किंतु ताको पढ़ी बुझी शैली को आपणेबा ताहा अनुवाद संगे समान नुहे ठीक सी भी किसी कम नथिले माने तुम 6 माण 8 गुण लिखिं फकीरमोहन सेनापति किसी कम नथिले राधानाथ भी से समसामयिक राधानाथ को भी जी मान्यता दि जाऊला जड़े राधानाथ बेसी परिचित होती कवि भाव में किंतु फकीरमोहन सेनापति बेसी परिचित हेले औपन्यासिक बा कथाकार भाव में दी जन जंकर समान बैलेंस
व्यासकवि उपाधि मिलता आंकु कौन उपाधि मिलता कवि बर राधानाथ राय सब गोटे गोटे समय कवि 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 माने लेखक माने ऊपर लेवल लोक मैंने टिके भल जे देखिले से समय भल साहित्य भल भाषा उन्नत मानर साहित्य देख आउ गोटे कथा गोटे समय 10टा लोक साहित्यिक थे है ता भितर समस्त साहित्य उन्नत मानर हो पारे जार होगला एकाथर उन्नत मानर समस्ते पढ़िले जन आदृत है लोक मैंने पढ़िले बुझिले लोक मैंने मन को छुईला सी होगला फेमस राताराति नुहे तार अर्थ नुहे जो समय फकीरमोहन सेनापति साहित्य रचना करते से समय आउ किए साहित्य रचना करू नथिबे हुए तो मानकर साहित्य टिके निम्न मानर थाई पारे आ जो साहित्य बा लेखाटी आगू जाई न पारे आ फकीरमोहन सेनापति बेसी प्लस पॉइंट थिला कौन जो समसामयिक साहित्य समाज तत्कालीन दुख दुर्दशा को लेकिना से जो सत्यता को लेकिना जो साहित्य गुड़ाक रचना कले से बहुत सारा उपाधि मिलगला व्यासकवि बोली ना दिगला उपाधि मिलगला कहीं ना से लोक मानकर जो इच्छाटा धीरे धीरे समय अनुसार परिवर्तन हुए सबू लोक प्राचीन को भल पाइबेनी किंबा सब लोक आधुनिकता को भल पाइबे जिते बड़े आम गप प्राचीन साहित्य पढ़ले आमको गप भली मन हुए रामायण महाभारत जहाँ पढ़ भल लगे गप भली मन हो ठीक से समय आम मानकर वर्तमान समय जो घटना गुड़िक घटुची ताकू जदि आम आणिकी किए गोटे तुमको कहला निहाती भाव से तुमको जानवा इच्छा कहीं आम समय घटना एवं कोविड विषय जदि आम किसी कथा कौन असुविधा है कौन ता विषय गोटे स्टोरी आसो निहाती भाव तुम मन माने इच्छा हम उत्सुकता बढ़ो जे हाँ आम यहाँ को आखि आगे देखीचे आम समय एमती गोटे घटना घटी जोटा कि आम जाने आम एत खुशी जीवन जापन कले जाओ ये एत बड़ गोटे पैंडेमिक रु बाहरी पड़े किंतु यही पैंडेमिक रे बहुत लोग केते जंत्रणा अनुभव करते कष्ट होती तेणु से कवि मानकर विभिन्न कवि विभिन्न लेखक मानकर घटना सब जे किए बड़ किए सान किए आग किए पछ सेमती न था विभिन्न सी गद्य बेस्ट ये पद्य बेस्ट सी लेखा जो लोक मान मन को छुईला से भल भल उपाधि देले आंक लेखा जो लोक मान मन को छुईला आंको उपाधि मिलला तेणु समस्ते माने पूरा परिपूरक समान से जहाँ भी हो सी करथिले कौन पाश्चात्य साहित्य किछि ज्ञान संग्रह करी ज्ञान आहरण करी उत्कलीय परिप्रेक्षी उत्कल प्रसंग में अति सुंदर भाव से सदृशीकरण करिसेंती से हेउछंती आधुनिकता और प्राचीनतार संयोग सेतु एइथि पई कि तांको काहेकि जुग कुहागला राधानाथ जुग नहीं कि कहीं जस्ट राधानाथ पूर्वर प्राचीन साहित्य आउ राधानाथ आसीगले आधुनिक साहित्य को तो से जो मझी समय जनक जुग केते बेले कुआजिवो गोटे जेज अछि जेजर घर ठू सीधा डेईकी नाती घर आसी परिबनी मझिरे गोटे रहिला के बापा घर तापरे आसला पुओ घर तापरे आसीबो नाती माने तळ पळ पीढ़ी परे पीढ़ी तो जेते बेले गोटे सारला साहित्य आग आसिला सारला जेना आदि कवि सारला जुग सारला साहित्य पर सीधा कौन आम भंज को आसीगले कि नाई मझिरे रहिला पंचसखा जुगीय साहित्य कि से जो धीरे 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 आम क्रम अनुसार जहाँपर जी आसी जेहेतु प्राचीन साहित्यर इमिडिएट जस्ट माने परवर्ती समय राधानाथ आधुनिक साहित्य को रखिले से होगला राधानाथ जुग कहीं प्राचीन आधुनिक बंशी जाणी गोटे जुगसूत्र रक्षा कले सेतु सदृश इमिडिएट आसिले बोली गोटे जुग होगला राधानाथ जुगीय आउ से राधानाथ जुगरे जो माने आधुनिक साहित्य रचना करुथिले से समस्ते हो गले राधानाथ जुगीय साहित्यिक खाली जे राधानाथ नुहति राधानाथ समय जो जो माने सब साहित्य रचना करते से माने आधुनिक साहित्य रचना करने आस्ते आस्ते आरंभ है तेणु से आधुनिक जुग एबे चली समसामयिक साहित्य किए कहते यही समय जो साहित्य लिखा है समसामयिक वर्तमान किंतु पुणी पीढ़ी आसिले किसी साहित्यिक पुणी से भंज साहित्य को अपनाऊँ लिखुं से शैली किसी समाज रे घटी घटना को लेकिन साहित्य रचना कर समसामयिक साहित्य बा समकालीन साहित्य किसी प्राचीनता को भी आपणाई से आधुनिक अत्याधुनिक आगू को अत्याधुनिक किसी माने नुहे कहीं आज धीरे 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 लेखार परिवर्तन है लेखा टेक्नोलोजी आड़ को गलानी साहित्य धीरे धीरे टेक्नोलोजी आड़ गलानी तेणुक असंभव नुहे खूब शीघ्र अत्याधुनिक साहित्य गोटे आउ गोटे जुग आसो नेक्स्ट परवर्ती पीढ़ी मैंने सी पढ़े हाँ से जब भी हो से करथिले कौन आधुनिकता और प्राचीनतार संयोग सेतु रक्षा करथिले सेति जुग गोटे होगला
ରାଧାନାଥ ଯୋଗ ବୋଲି ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରବାହ ଧାରାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ନହୋଇ ସେ ନୂତନ ଯୁଗର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଆଉ ସେ ଏମିତି ଜଣେ କବି ଥିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଉ ପ୍ରବାହ ଧାରା ପୁରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇ ନଥିଲେ, ତାକୁ ଆକୁ ସେ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ବା ଗୋଟେ ବ୍ରିଜଟେ ଦିଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଯୋଗ ରକ୍ଷା କରେ, କାଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଏ ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲି, ସେଇଠୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଯିବ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର, ନୂଆ ହବ ନବୀକରଣ ହେଇକିନା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବା। ତା ସେ ହେଇନଥିଲା। ସେ ଥିଲାବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ପୁରା କାଟି ଦେଇ ନଥିଲେ, ତାରୁ କିଛିଟା ଆଣିକି ନୂଆ କରି ଆଧୁନିକରେ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ତା ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରବାହ ଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବାହ ପ୍ରାଚୀନ ଧାରାରୁ ବା ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଲେଖାର ଶୈଳୀରୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଅଲଗା ନ ହୋଇ ସେ ନୂତନ ଯୁଗର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବା ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟା। ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟା ସିଏ, ଯିଏକି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟରୁ ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଣିକି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁ ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପଟେ ଥିବା ଯୋଉ କଥାବସ୍ତୁ କିଛି କଥା କିଛି ଘଟଣା ତାକୁ ଆଣିକି ସେଥିରୁ ସେ ତାକୁ ଆଣିକି ଓଡ଼ିଆରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆମରି ମାଟିର ଆମରି ଜାଗାର କଥା ଥିଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଆର କଥା ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର କଥା ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପଟର ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଣିକି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆରେ ମିଶେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ସେ ଆଗକୁ ବଢିଲା, ତାଙ୍କ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଜନ ଆଦୃତ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଥିଲା କ'ଣ, ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ଓ ଉପଧା ମିଳନ ତାଙ୍କର ଅଭିନବ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର କ'ଣ, ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ତାଳମେଳ ଯୋଉଥିରେ ରହେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ପଦର ପ୍ରଥମ ଧାଡିର ଯେଉଁ ପଦ ଗୋଟେ ପଦ ଥିବ ତାର ପ୍ରଥମ ଧାଡିରେ ବା ପ୍ରଥମ ପାଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ସହିତ ପର ଧାଡି ସେକେଣ୍ଡ ପାଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ମିଳେନି, ସୁର ପଡିବନି କେବେ। ତା ଥିଲା ଅକ୍ଷର ମିଳେ ନାହିଁ। ତା ଥିଲା ଗୋଟେ ତ ଅଛି ତାଙ୍କର ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଉପଧା ମିଳନ। ଉପଧା ହେଲା ପଦର ଅନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଉପାନ୍ତ। ସେଟା ପଢିଛ କି ତମେ? ନାହିଁ, ସେଟା ଅଛି ତୁମର ଅଳଙ୍କାରରେ ହେଲା। ଅଳଙ୍କାରରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଅନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତାର ଉପାନ୍ତ। ଉପାନ୍ତ କହିଲେ ସେଇ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଦି ପଟର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ପଢିବ, କାହିଁକିନା ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ନାହିଁ, ତା ଅଳଙ୍କାରରେ ଅଛି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଉପଧା ମିଳନ କହିଲେ ପର ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଉ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଉପଧା ମିଳନ ବୋଲିକିନା। ଗୋଟେ ଧାଡିରେ ଗୋଟେ ପାଦ, ଏଇଟା ଯୋଉ ପରବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ବସ ଥିବ, ତଳ ଲାଇନ ଟା ବି ହସ ଥିବ। ଯେମିତି ଏଇଟା ସ ଆର ମିଳନ ହେଲା, ଏବଂ ଉପାନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ସର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ସର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଆସିବ? ବ ସ ବ ଅଛି, ବର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ବ ଯୁକ୍ତ ଅ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସ ପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅ ଅଛି, ତାର ମିଳନ ଉପର ଆଉ ତଳ ସମାନ ହଉଥିବ। ସେଇଭଳି ସାହିତ୍ୟ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଅଳଙ୍କାର ଦେଇକି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ। ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ, ପ୍ରଥମ ତ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଧାଡିର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିବନି ସିଏ ହେଲା, ଏବଂ ତାପରେ ଉପାନ୍ତ ବା ତମର ଅନ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଶ୍ରଣରେ ତାକୁ ଉପଧା ମିଳନରେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିନବ ସୃଷ୍ଟି, ନୂଆ କରିକି ସୃଷ୍ଟି, ନୂଆ ସାହିତ୍ୟ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମେ ତା ଆଗରୁ କିଏ ବି ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ଆଉ ଉପଧା ମିଳନ ତାଙ୍କର ଦିଟା ଯାକ ଯୋଡ଼ିକିନା ତାଙ୍କର ସବୁ ଛନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ ଉତ୍କଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିକୃତି କହିଲେ ଚଳେ। ଯେତେ କାବ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାବ୍ୟ ଉତ୍କଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ଶୋଭା, ଯାହା ତୁମର ନଦୀ ଝରଣା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରତା ଅଛି ଉତ୍କଳୀୟ, ତାହାର ପ୍ରତିକୃତି କହିଲେ ଚଳେ। ପ୍ରତିକୃତି କହିଲେ ପ୍ରତିଛବି ବା ପ୍ରତିରୂପ। ଉତ୍କଳର ସିନେରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯାହା ବା ଯେ ତୁମର ଯୋଉ ନେଚର ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଯେତେ ସାରା ନେଚର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାବ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ନେଚରର ପ୍ରତିଛବି କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତମେ ଯୋଉ ବି କାବ୍ୟ ପଢ଼, ସବୁ କାବ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି
आज जोटा पढ़ा आम नंदिकेश्वरी काव्य नंदिकेश्वरी काव्य सीना राजा राजा कथा अच्छी किंतु बाकी गुड़ाक जो वर्णना गुड़िक पूरा उत्कलर सब कौटी पहाड़ अच्छी कौटी पर्वत अच्छी नदी सबू जिनसर वर्णना करोठी जो साहित्य आम नदी झरणा पहाड़ पर्वत आम सुंदरता को वर्णना करवा प्रकृति को वर्णना करवा प्रकृतिर प्रतिछवि तो एतद व्यतीत मानव जीवनर हास्य अश्रु अनुराग विराग व्रीड़ा वैकल्य यार कथा कौन कहते एतद व्यतीत मानव जीवनर प्रत्येक मनुष्यर ता जीवन में घटुवा जो घटना गुड़िक जो कथा गुड़िक किए केतेबेले हस केतेबेले कांद अश्रु हास्य आउ अश्रु हास्य कहले हस अश्रु कहले कांद कहीं प्रत्येक मनुष्य जीवन ताहा आसी थाए अनुराग अनुराग कहले स्नेह विराग विराग कहले विरक्ति भाव मु तुमको स्नेह करी ना तुम उपर विरक्ति हे अनुराग ना विराग व्रीड़ा वैकल्य व्रीड़ा कहले लाज सरम जोटा हाँ ताकू कहबा आमे व्रीड़ा सरम माने गोटे मनुष्यर सरम प्रकृति बा लज्जाशीलता ताहाकू कहबा आ गोटे कोन अछि वैकल्य वैकल्य कहले विषादग्रस्त दुख भली किछिटा आ मानसिक पीड़ा बा दुर्बलता मनर पीड़ा मन दुख डिप्रेशन जोटा दुख ताकू कहबा आमे वैकल्य आमोद प्रमोद आमोद कहले हर्ष बा खुशी आनंद प्रमोद कहले मध्य सही सुख आनंद तो आकू नहीं कि ना तांको साहित्य विरह मिलन विरह कहले विच्छेद मिलन कहले मिसिबा हाँ दी जन सांग अलगा हो दिज सांग नायक नायिका बिछिड़ी जा नायक नायिका पुनर्मिलन हवा तो यही विभिन्न प्रकार चित्र तांको काव्य रे देखिया मिले केतेबेले हस तो केतेबेले कांद केतेबेले दुख तो केतेबेले सुख केतेबेले लज्जा तो केतेबेले विरग कौन विरह भाव तो केतेबेले पुनि पुनर्मिलन भाव यही विभिन्न प्रकार कला आमे तांको काव्य रे देखा पाइबा जेते सारा काव्य तांकर अछि खाली जे नंदिकेश्वरी काव्य कथा कह जाउने तांकर संपूर्ण काव्य जहाँ सब लिखिछन्ते सबुथिरे मध्य अंकित होइछे तबे आजिर जो काव्यटी नंदिकेश्वरी काव्य रे कथा वस्तु कौन राधानाथंकर अनन्य काव्य संग्रह मध्य 1887 मसीह प्रकाशित नंदिकेश्वरी बेस विशेषत्व बहन करिथाय विशेषत्व बहन करिया माने गोटे असाधारण जिंस साधारण ठू बहुत ऊपर बहुत फेमस हो जाइथिला सेटा ताले केबे हितला सेटा को मसीह रे प्रकाशित हितला नंदिकेश्वरी ठीक विशेष विषय वस्तुर नूतनता सहित अद्भुतपूर्व काव्य निर्माण कौशल नैपुण्य बहन करी पाश्चात्य आहरण करी सहित प्राच्य दृष्टिर समन्वय मध्य एक उच्चांग काव्य भाव परिचित होइछि एक उच्चांग काव्य उच्चांग कहले उन्नत मानर बा उच्च मानर सुंदर काव्यटीए जेउथिरे कि सीए पाश्चात्यर किछि ज्ञान आहरण करी संग्रह करी प्राच्य दृष्टिर प्राच्य कहले मध्य प्राचीन आ पूर्व को बुझेबा किंतु एठी प्राचीन को बुझेबा कारण से प्राचीन साहित्य आ पाश्चात्य साहित्य को जोड़ी चंती ए साहित्य रे प्राचीन कथा वस्तु गुड़िक अच्छी माने आमर पूर्व ऐतिहासिक कथा घटना गुड़िक राजा राजण घटना को जोड़ी आउ से किछि साहित्य पाश्चात्य देशर मध्य रखिछन्ति ओविड को मेटामॉर्फोसिस काव्यर अष्टम कविता से जो कथा वस्तु आनिचंत कोठो आनिचंत कथा वस्तु न किछिटा जो बखाणीबा स्टाइल टा बा जो रचना करिबा रो स्टाइल टा आनिचंत कोठो ना ओविड जणे थिले तुमर बाहर इंग्राजी कवि तांकर मेटामॉर्फोसिस काव्यर अष्टम कविता मेटामॉर्फोसिस गोटे ना रे गोटे काव्य तांकर थिला ओविडकर तबे क्वेश्चन आसीबो जे मेटामॉर्फोसिस काव्य की रचना करिसेंती कवि किए से होजंती ओविड तांकर से काव्यर गोटे अष्टम कविता जार ना थिला द किंग मीन्स एंड शिला रो कहानी से गपटी रे बा से जो काव्यर अधा भागटी अष्टम भाग रे जो वर्णना करे जो कविताटी बा जो काव्यर अधा भागटी सेथिरे जो कहानी गुड़िक थिला सेही कहानी आउ बायरन को द सीज ऑफ कोरिंथ आउ जने लेखक सॉरी आउ जने कवि बायरन कहिकी तांकर लेखा थिला द सीज ऑफ कोरिंथ से ग्रंथरु मध्य किछि कथा वस्तु संग्रह करी कवि नंदिकेश्वरी रो परिकल्पना सहित जोड़ीचंती कोन ए दीटा हैला तमरो पाश्चात्य साहित्य से किभली भाव में पाश्चात्य को प्राच्य साहित्य रे जोड़ीचंती प्रथम रे आमे आगुरु पढ़िले एई काव्य रे संपूर्ण काव्य रे से पाश्चात्य को प्राच्य सहित अति सुंदर भाव में जोड़ी किना साहित्यटी को वर्णना करछन तेबे पाश्चात्य रे गला कोन बायरन कर गोटे ओविड कर गोटे नहीं दीटा लेखा कर
स्टोरीटा को आनिचंती केवल कहानी को आनिचंती द किंग मेंशन शिला एंड एटा अछि मेटामॉर्फोसिस रो एंड द सीज ऑफ कोरिंथ ताहा अछि बायरन कर लेखा से दीटार कथा वस्तु संग्रह करचंती एवं हमर पूर्व बा जो तुम आमे जदी कहबा प्राच्य साहित्य रे कोन अछि सही कथा संग्रह कवि नंदीकेश्वर परिकल्पना सहित उत्कलीय इतिहास आम उत्कलर इतिहास जोड़ा प्राचीन बा आम देशीय हाँ प्राचीन माने पूर्व घटना उत्कलीय इतिहास और किंबदंती को किंबदंती कहले जो जनश्रुति गुड़ाक सुसंयोजित कर एक बृहत्तर ऐतिहासिक चित्र निर्माण रे से समर्थ हो पारि तो ये जो जोड़ी की पूर्व पाश्चात्य साहित्य एवं प्राच्य साहित्य आम प्राचीन साहित्य को जोड़ी के अति सुंदर भाव में काव्यटी रचना करछंती जो काव्य दीटा भाग दीटा सर्ग तुमर अच्छी काव्य दुईटी सर्ग विभक्त नंदीकेश्वरी काव्य नटवाणी वृत्त रचित नटवाणी वृत्त जोड़ा छंद ये छंद तुमको जिते नेक्स्ट क्लास रे पढ़ेबी छंद तादरे बुझीबो जे जेमिति को केते पदरे केते पद हुए दुई पदरे एक पद हुए बा चारि पदरे एक पद हुए कि दुई पदरे एक पद हुए यही वृत्तटी खाली मन रखिता जे दुईटा जांक छंद काव्य रे दुईटा जांक सर्ग रे से नटवाणी रे आवृत करछन शॉर्ट क्वेश्चन बेले बेले आसीबो नंदीकेश्वरीटा केतोटी सर्ग रे विभक्त होईची एवं केउ वृत्त रे रचना करा जायची प्रथम तो यह दुईटी सर्ग रे विभक्त होईची एवं ता नटवाणी वृत्त रे रचना करा जायची प्रथम सर्ग रे अछि कोन प्रथम सर्ग रे कवि राधानाथ काठजोड़ी तीर रे चोड़गंगा देवंक समर सज्जार विस्तृत चित्र सहित उत्कलर नैसर्गिक प्राकृतिक शोभा संभार वर्णना प्रदान करिसेंती तो कोन रखिसेंती प्रथम सर्ग रे मने पकाओ जदि तुम इतिहास जो मानक थिबो बा स्कूल लेवल ले पढ़िथिबो चोड़गंगा देव राजांक विषय रे मन नहीं चोड़गंगा देव ठीक तो तांकरी कथा एथरे वस्तु वर्णना करा जायछि किछिटा ऐतिह्य किछिटा पाश्चात्य कथा वस्तु है तो अच्छी कौन ना काठजोड़ी तीर रे काठजोड़ी कटक रे जो काठजोड़ी बही जाइए काठजोड़ी नदी तीर रे चोड़गंगा देवंकर समर सज्जार विस्तृत समर कहले युद्ध करिया पूर्व जो सजासजी होता है तार दृश्य को खूब सुंदर भाव से वर्णना करचंती एवं ता सहित उत्कलर नैसर्गिक प्राकृतिक शोभा संभार वर्णना करा जायछि खाली जे युद्ध सजासजी ता नुहे ता सहित उत्कलर नैसर्गिक कहले स्वाभाविक बा स्वर्गीय प्राकृतिक शोभा प्रकृतिर जो शोभा बा सुंदरतार संभार कहले पूर्णता बा समारोह को अति सुंदर भाव में से वर्णना करिसेंती काव्य अर्थात चोड़गंगा देवंकर एक रे तो युद्ध करिया पूर्वर जो समर सज्जाटा होता है सुंदर साजसज्जा ताको वर्णना करचंती ता सहित वर्णना करचंती कोन उत्कलर जोटा स्वर्गीय शोभा गुड़ी को उत्कलर स्वर्गीय सुंदरता गुड़ी को प्रत्येक क्षेत्र में से प्रत्येक धाड़ी में कौ कौ बाटे वर्णना करचंती उत्कल कहले खाली जे गोटे जगार नुह खाली कटक काठजोड़ी नुह उत्कलर बहुत गुड़े जगार शोभा से वर्णना करचंती जोटा आमे धीरे धीरे पढ़ेबा हाउ शॉर्ट रे कहि दोची तुमको तापर विषय रे पढ़िबो जो चोड़गंगा देवंकर कथा जोटा करा जायछि से चोड़गंगा देव किभଳି भाबरे से समय उत्कलर तत्कालीन नरपति थिले सुवर्ण केसरी होचंती से समय जिते बड़े राधानाथ राय काव्य रचना करिसेंती बा जो गपटी को हमको कहबा को चाहउचंती से काव्य माध्यम रे तो से काव्य रे राजा थिले कि से समय रे तत्कालीन माने से समय तत्कालीन से जो समय लेखा लेखी करथिले से समय कथा से समय रे सुवर्ण केसरी बोली जणे राजा थिले उत्कल रे हला से राजा थिले राजांकर झियो ना हला नंदिका तो नंदिकेश्वरी काव्य कहीं तार ना है तो राजा थिले उत्कल सुवर्ण केसरी राजांकर झियो हला नंदिका चोड़गंगा देव कौन करथिले बारंबार उत्कल आक्रमण करुथिले नेबाई कि उत्कल को अख्तियार करने तेणु कौन है एठी जड़े गड़चंडी देवी अच्छा उत्कल आमर कटक रे गड़चंडी माँ तुम से जो कौन है स्टाडियम पटे गड़चंडी तो से गड़चंडी माँ को ये मागे सेपटे कौन है ना चोड़गंगा देव को शिव वर देइछंती आ गंगा नदी मध्य वर देइछंती जे उत्कलटा तार हेजिवो किंतु एपटे ए जो सुवर्ण केसरी को देइछंती के माँ ना कौन कहली गड़चंडी गोटे माळ देइथिले माळटे जोटा कि तू पकेइले तो तू तांको आगरु कहले तू ताको युद्ध रे पारिबुनु जो चोड़गंगा देव को तू युद्ध रे पारिबुनु किंतु जदि माळटा को धारण करिवु से तोर किसी क्षति करि पारिबुनु तू बाहर को बाहर तो दुर्ग बंद कर देबु युद्ध रे पारिबुनु युद्ध करिबु नाही
तू तोर माने तोर बाट बंद करदेबु से तो बाट को भेद करी भितर को पशि पारिबनी आ जदि तांको तू खोली जाई ताको युद्ध करी हरिया को चेष्टा करू ताले तो केबे तांको पारिबनु तेणु करी जा फल से जो धारण करथिले माळटी मा देइथिले सेति पय कि चोडगंगदेव अनेक दिन धरिकी युद्ध रेडी कर सेति केबे आक्रमण करि पारु नथिले एपटे चोडगंगदेव एते सुंदर देखा सुंदर एते शक्तिशाली सबु दिग्विजयी सबुटा जय कर देखिकी नंदिकांकर तांको प्रति गोटे आकर्षण भाव आसला सी कौन करते से जो मालीटी को राताराति नहीं कि ना तापर विभिन्न एटा तो छोट काव्य तो विराट बड़ मु सर्टकट रे कहूँ स्टोरी कौन तापर आम काव्य को जावा कहीं नंदिकेश्वरी नाटा दिगला तो से जो नंदिका कौन कर नंदिका नहीं से माल बाबार नहीं देखी पलि धरिकी जाकि चोडगंगदेव को देला परे कौन है सीए किंतु ताको ग्रहण न करिकी झील को ग्रहण करना से जो जिनस को ग्रहण कर युद्ध करना आनी मु कहीं माने गोटे से झील को से देइचंती मान्यता कौन प्रथम तो राजद्रोही तुम राजद्रोही माने राज्य को तू माने कौन कलु ये धोखा देलु ना राज्य को धोखा दे जिनस नहीं पलि आसलु पितृद्रोही बापा को धोखा देकी नहीं आसो यही कथा कह पुणी सब सजे साजे देना माने बसईकिना गोटे सवारी रे वापस नहीं कि आसुंच राजा पाखक फेरई देवाई से भितर खराब लगी राणी को से जो झीटा को खराब लगी जी पुणी बापा मुह को केमी चाहिए सी गोटे बड़ लंबा चिठीटे लिखी चोडगंगदेव ये प्रकार लोक से खराब न मुह देखा पारनी आपको माने मत खराब लगुच तुम पोष्य पुत्र भाव में नहीं जाओ पुत्र भाई ग्रहण कर एमती कही आत्महत्या कर तो से ना नंदिका एमती देला बोली काव्यर अधा एथरे अच्छे किंतु पूरा काव्यटा जदि आम पढ़ा तादरे गपटे अच्छे तेणु करिकिना से नंदिकेश्वरी काव्यटा दिए से ना देले नंदिकेश्वरी काव्यर ना देले नंदिकेश्वरी बोली जा हो आणिकी देइचंती पर मुहूर्त तुम राजा एथि की कौन ना अच्छी सुवर्णकेश्वरी सुवर्णकेश्वरी कौन कर नंदिका झील बोली नंदिकेश्वरी दिगला सुवर्णकेश्वरी कौन कले चिठी पढ़िले पुणी से जो देदेले फेरई देते जिते राजा ये देले चोडगंगदेव को से नहीं पुरी आड़ को दान करागला पुरी रे भगवान को मंदिर रे एमती दिगला गपटे ये किसी लिखिं जाओ से नंदिकेश्वरी तो ये अच्छी से राजा चोडगंगदेव पराक्रम सम्मुखीन हो न पारी युद्ध पर युद्ध कर शेष राजा सुवर्णकेश्वरी गड़चंडी शरणापन्न हेले देवी गड़चंडी राजा को स्वप्न दर्शन दे कहले चोडगंगदेव देवी गंगा आशीर्वाद लाभ कर बलियान होते तेज माँ कहले माँ गड़चंडी कहले सी गंगा आशीर्वाद पाई तेणु मुझे जिते बर देले भी तू जीति पारिबुनी खाली ये बर दे पारि तू बंची रही पारिबु तो गड़ भितर से पशि पारिबनी किंतु यदि तू युद्ध करू तू जीति पारिबु नहीं एणु तांको सम्मुख रे युद्ध रे केही परास्त करि परिबे नहीं एपरिक देवी गंगांकर वाक्यानुसार महाकवि शिव मध्य चोडगंगा को उत्कलर सिंहासन प्रदान करने पर इच्छा प्रकाश करिसेंती तो प्रथम तो देवी माँ माने केमिति गोटे भाग्यर विडंबना देवी माँ एपटे तांको सुरक्षा बल भितर रखिले क्या गड़चंडी देवी माँ सुवर्णकेश्वरी को सुरक्षा रखिले जहाँफल कि सी जिते आक्रमण कले परास्त करना सेपटे आशीर्वाद मिली चोडगंगदेव को शिव आशीर्वाद देते गंगा माता आशीर्वाद कर तू उत्कलर राजा हबु ताले हबो केमिति केबे तो देवी देवी भितर कि देवता देवता भितर फाइट हेनी कि समस्त पाखे सुपर न्याचुरल पावर अच्छे से घटना कौन है कविंर जो काव्यिकता परिप्रकाश केमिति है से घटना सांग सांग मोड़ बदलुच झीटा निजे विश्वासघातकता कर आसी जहाँ फल कि राजा निजे बिना युद्धरे निजे चली जाइछंती तीर्थ करिया को बिना युद्धरे दे चोडगंगदेव को उत्कल देदेले एटू फाइनाली शिव कथा ठीक है कार गंगा माता कथा ठीक है सुवर्णकेश्वरी चलीगले तो ठाकुर भक्त होगले से पलैले तीर्थ स्थान को एपटे ये पाइले राजा तेणुक ये भाव से लेखा क्या कथा भूल हेनी कहीं चोडगंगदेव बहुत थर भाई मु परास्त जो करें कौन गंगा माता कथा भूल हम कि शिव कथा भूल हम कि ये प्रश्न बहुत थर आसी इतिमध्य चोडगंगदेव फेरी जावाई चाहते जो दिन राति पाइले से फेरी जाते ठीक से राति नंदिका आणिकी आसिक हाजिर तेणु सम्मुख समरी विजय होगा आशा त्याग करी बिड़ानासी गढ़ मध्य अवस्थान करने को निर्देश देले राजा एक
जैत्रमणि से जो जैत्रमणि कहले जयशील मणि तमे एटा मणिटा को धारण कले मालाटे धारण कले तुमको से आ परास्त कर परिबनी करी मणिटी को सर्वदा धारण करिया को परामर्श दे देवी अंतर्धान हेले देवी आज्ञानुसार सुवर्णकेशरी से ही दिन ठारू युद्ध जय आशा त्याग करी जैत्रमणि धारण पूर्वक गढ़ मध्य निरापद अवस्थान करथिले से आ युद्ध न करिके गढ़ भितर रहले से गढ़टा एते शक्तिशाली हो गला जे से मणि धारण जेहेतु करचंती एते एमाने जेते युद्ध कले मध्य से भेद करिके भितर को जाई पारु नथिले अपरपक्षर दीर्घ दिनर संग्राम पर चोड़गंगदेव गढ़ भेद कर पारे नहीं फल सैन्य बाहिनी धैर्यच्युति घटिला और से स्वदेश प्रत्यावर्तन प्रस्ताव देले चलो आउ हबनी आम फेरी जावा किंतु सेनापति मानसिक अवस्था लक्ष्य कर चोड़गंगदेव शेष को कहते काली राति जाए धैर्य धरी रुह काली राति पाइले नगर परित्याग कर निज राज्य को आम बाहुड़ी जावा यह कही चोड़गंगदेव एकांतर चिंता करने लगिले से गंगा माता निर्देश उत्कल भूमि को आसीथिले से मने मने भाविले मते तो गंगा माता कही निर्देश ही मु उत्कल को आसी किंतु आज कौन गंगा माता कही उत्कल भूमि को शाक्त धर्म मत और शाक्त अनाचार दूर कर वैष्णव धर्मर भावधारा प्रचार करने को कहीं शाक्त धर्म मत अर्थात शाक्त धर्म को विश्वास करुवा लोक आउ शाक्त अनाचार शाक्त धर्म होता कौन अनाचार होता जीवन चर्याटा अति अनाचार कहीं बलि प्रथा माने एमती सब चली निरीह पशु मानक माँ पाखे बलि दि जाऊला जोटा कि कौन देवी देवता मैंने केवे कही ना जे आम पाखे आणिकी बलि निरीह जीवजंतु मानक बलि चढ़े दियो जे आम तुम उपरे खुशी हो तुम आमको बलि चढ़ेदेले आम तुम पर खुशी होगी तुमको अभय बर प्रदान करूँ यह कौ देवा देवी केवे कही नथिबे तेणु से ही कथा को गंगा माता कहते तू जा एभली गोटे जो शाक्त धर्म हिंसुक भली धर्म को बंद करके तू वैष्णव धर्मर प्रचार करू यापर चोड़गंगदेव घन अरण्य गंगा ठारू प्राप्त यही अभय आशीष विषय सेनापति आगे बयान कले पाखरे उपस्थित थे मंत्री वासुदेव से माने एभली आलोचना रत थिबा समय संध्या नई आसिला समस्ते जे जा कर्म लगी देवी वाक्यर फलाफल को अपेक्षा करथिले भाबुतिले कि सतरे कौन देवी एमती जो वाक्यटी कहते भूल हो कि द्वितीय यह अच्छी प्रथम सर्गरे एतिकी कथा मात्र प्रथम सर्गरे अच्छी से माने कथबार्ता होचते जहाँ जमी द्वितीय सर्गरे कौन अच्छी द्वितीय सर्गरे अच्छी बिड़ानासीगढ़ आनंद उत्सवर चित्र वर्णना है कारण रात्रि अवसान पर प्रभातर आगमन सहित शत्रु सैन्य मैंने बड़ त्याग करी गढ़ त्याग कर स्वराज्य को प्रत्यावर्तन करेंगे बोली गुप्तचर सन्देह आनी एणु गढ़ मध्य आनंद उल्लास सहित गढ़चंडी आराधना समस्त आयोजन चली एते सब आनंदर वातावरण सत्ते राजनंदिनी नंदिका जे राजांकर नंदिनी बा पुत्र सॉरी कन्या राजनंदिनी नंदिका नंदिका तांकर कन्या मनरे किंतु विषादर चिन्ह दुखर चिन्ह से कहीं से जेहेतु तार चोड़गंगदेव प्रति गोटे आकर्षण आसीथिला से चोड़गंगदेव जेतेबेले चली जावा शुणुची ता मनरे टिके विषाद आसी दुख आसी सुवर्णकेशरी एकमात्र अपरूपा कन्या नंदिका बहु अलिअली रे बढ़िचंती तेबे तांको मन राज्य रे केउ कीट पसी तांको विषादित करिछि ताहा सभिंको अगोचर उत्सव शेष रे जेमा अंतपुर को बाहुड़िछंती भोजनांते समस्ते विश्राम करिछंती बिड़ानासी बड़ गड़ मृतकल्प मन होइछि सकल प्राणी निद्रा जाइछंती केवल मात्र उन्निद्र अछंती राजजेमा नंदिका तांकर मन राज्य रे झड़ सृष्टि करिछंती चोड़गंगदेवंकर अंग सौष्ठव और वीरत्व संदर्शन रे प्रणयासक्ता तद्गण प्राण नंदिका प्रियंकर स्वदेश प्रत्यावर्तन रे संदेह अतिशय व्यथित होइछि ए सब घटना गुड़ा दे सेइति कि से जो भाभी चलचंती बारंबार राजा चोड़गंगदेव विषय जहाँफल राति से मालाटी को जैत्रमणिटी को लेकिन चली जापर घटना एमती आसिक पुणी से मरी जाइए शेष गपर अच्छी या आम जो द्वितीय पर्याय पढ़ा से गपटी पूरा पढ़ा आम प्रथम पर्यायर टिके देखिए कौन लिखिं काव्य ये तो थिला आम कथार पढ़ीदे बुझीदे अति सहजरे बुझे किंतु काव्य सी बहुत गुड़ाए जिनस रखिंट काव्य अच्छी कौन नंदिकेश्वरी काव्य प्रथम सर्ग आम पढ़ीचे आगुरी नटवाणी रे वर्णना करा जायछि काठ जोड़ी तीरे शोभई शिविर कोलाहलपूर्ण काठ जोड़ी तीर
आमे आगु पढ़ी कौन ना काठजोड़ी रे कौन अच्छी प्रथम भाग में अच्छी कौन ना काठजोड़ी वर्णना शिविर युद्धर शिविर वर्णना होती सहित उत्कलर प्राकृतिक दृश्यर वर्णना करे सुंदरतार वर्णना कर तेज काठजोड़ी तीरे काठजोड़ी नदी कूल शोभई शिविर शिविर है तुम सैन्य निवास शिविर कहले तंबू सैन्य मान जो रहा जो तंबू होता है ताकू आम कह कोटा 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 कहला हाँ से दुर्गटा आ तो गोटे तो से दुर्ग खाली कटक रे काठजोड़ी तीरे शोभई शिविर से युद्ध आगु होता तापर से जाइथिबो देखो एमती मझिरे गोटे चलिक जावाई दी पट साइड गोटे गात भाई पानी अच्छी से कह जाए कुंभीर गुड़ा बहुत रोते ना से आगु एमती कौन रोते ना बहुत ऐतिह्य अच्छे किए केते प्रकार कवि केते प्रकार कथा लिखिंट से सब आमर पुराणा ऐतिह्य गुड़ाक जहाँ भी हो तो काठजोड़ी कूलवर्ती अंचल शोभा पाऊँ शोभई शिविर शिविर कहले से जो राजा तंबू बा सामयिक सेना निवास सामयिक मान समूह भाव में बहुत गुड़े सेना जो निवास करते बास करते युद्ध पूर्वर युद्ध केमी करेंगे आसिक युद्ध तो गोटे सेकेंड कि गोटे दिन में सरबनी ना लगिक रहे मास मास वर्ष वर्ष युद्ध लगिक रहे तो युद्ध करेंगे कौट घरे खाई पी शोक तो युद्ध करेंगे आसवे गोटे युद्ध प्रांगण थाए रण प्रांगण रणभूमि से युद्ध हम तबे युद्ध कराया जो राति हो जाए संध्या पर आउ युद्ध हो पार ना से युद्ध कर बहुत नीति नियम थाए सूर्यास्त पर हेनी सूर्य उदय पर स्टार्ट हम बा सूर्य सकाळ हो गले सूर्य सकाळ सकाळ देखा गले युद्ध आरंभ हम सूर्यास्त पर शंख बाजिब आउ युद्ध हो पार ना समस्त जाकि निज निज जो खंडिया खबरा मालिश हे खाଇବା पीवा करके रेस्ट करेंगे पुणी तापर दिन सकाळ को युद्ध करेंगे तो से जो रेस्ट करेंगे कौटी करेंगे युद्ध जो हो पाखपाख अंचल शिविर बा तंबू टाणिकिना से युद्ध पाइकिना रेडी करते तो से जो शिविरटा बा सामयिक सेना निवासटी से देखा जाउछ अति सुंदर देखा शोभा पाचे कोलाहलपूर्ण काठजोड़ी तीर आउ कौन अच्छी ना काठजोड़ी तीरवर्ती अंचल बा काठजोड़ी जो कूलवर्ती तटदेशटी कोलाहलपूर्ण हो जाए कलरब घो घा होती कहीं बहुत सैन्य सामंत आना युद्ध करने तो तांकर आवाज गुड़ा जेहेतु से काठजोड़ी नदी कूल शिविर बांधी तंबू बांधी रोचंती तेणु निहाती भाव में जो जगार अधिक सैन्य सामंत अधिक लोक रे जगार कोलाहल हवाटा स्वाभाविक तेणु करके कोलाहलपूर्ण हो जाए काठजोड़ी तटदेशटी धाड़ी धाड़ी होई महानदी जाए शुभ्र तंबू शोभे खड़ी शैल प्राय देखा केमती जाऊँगी दृश्यर वर्णना करचंती धाड़ी धाड़ी होई महानदी पर्यंत काठजोड़ी जो कूलवर्ती अंचल जाइकी महानदी पर्यंत आम कटक रे जो मजेती बाट जाइए जगतपुर पाखे ना तुम महानदी ब्रिज गुड़ाक कौटी जगतपुर पाटी तो से पर्यंत धाड़ी धाड़ी महानदी धाड़ी काठजोड़ी कूल महानदी पर्यंत धाड़ी धाड़ी केमी देखा जाउछे से शुभ्र तंबू शोभे खड़ी शैल प्राय शुभ्र तंबू से जो तंबू गुड़िक बंधाई सेटा धला रंगर श्वेत उज्जवल देखा जाउछि शोभा पाउछि शोभे शोभा पाउछि किभଳି ना खड़ी शैल प्राय प्राय हैला भଳି खड़ी शैल भଳି देखा जाउछि खड़ी शैल कौन ना खड़ी पत्थर रे गठित पर्वत खड़ी पत्थर कौन से आगुरी थिला धला धला पहाड़ भाया तादर खंड खंड भांगिक आनिक से खड़ी लेखा पाई व्यवहार करते से गोटे प्रजातिर माटी बा गोटे प्रजातिर पहाड़ ताको आनी खंड खंड करके आ माटी ऊपर बा सिलटारे लिखुले ताको खड़ी शैल कहगला ये खड़ी शैल कहबार उद्देश्य जेहेतु तंबू गुड़ा एमती बंधा उच्चा उच्चा होगी तो से तंबू रंगटी धला रंगर श्वेत वर्णर तंबू बंधा लगुच दूर देखले एटा तो तंबू नुहे जो एमती 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 ढेउ ढेउ का देखा जाए दूर खड़ी शैल भाया देखा जाए शैल कहले पर्वत खड़ी कहले धला रंगर जो खड़ी लिखती ताहा से कहते से जो शुभ्र तंबू गुड़िक सत्य कि खड़ी निर्मित पहाड़ भली देखा जाउछि एटा अतीतर एक प्रकार जाति गोटे गोटे जातीय पत्थर हाँ पत्थर निर्मित पहाड़ ताकू काटिकी से पत्थर खंड खंड नहीं आसे भांगिकी माटी पोछि देकी जो माटी लिपि देकी घास उपाड़े तादर लेखा पाई सिलट रे लिखिया पाई व्यवहार करंती तापरे कहउचंती उड़ई केतन मंद समीरणे झक झके अस्त्र प्रदोष किरण उड़ई केतन केतन कहले पताका
सब युद्ध करकर रथ फतर पताका उड़ुची तंबू पाखे देशर जातिर जातीय पताका सब उड़ुची पताका मंद समीरण मंद है धीर समीरण है पवन मंद समीरण कहले धीर पवन रे मृदु पवन रे पताका गुड़िक खूब सुंदर भाव में उड़ुची जेहेतु आम यहाँ सुंदर दृश्य वर्णना करुचे तेणु कौ भली गोटे दृश्य देखा कथा से वर्णना कर झक झके अस्त्र झक झक है झटकिबा उज्जवल देखा अस्त्र गुड़िक जो खंडा तरुआल केते कौन बछा धनु सर जो विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र धरती जिते खरा पड़ुची प्रदोष किरण प्रदोष कहले ये सूर्यास्त समय किरण को सूर्य जितेबले अस्तगामी हो जाकर जो नालिया नालिया कमला रंगर जो किरण अस्तगामी सूर्यंकर किरण टी जितेबले अस्त्र शस्त्र उपर पड़ुची झक झक दिशुची झटकुची सुंदर देखा जाउची तबे प्रदोष किरण कहले सूर्यास्त समय किरण को बुझिबा कारण यहाँ संध्या समय दृश्य वर्णना है प्रथम काव्य रे सूर्यंकर अस्तकालीन दृश्यर वर्णना करा जायछि बादित्र शबदे कंपई अबनी नदी गर्भ उठे शत प्रतिध्वनि बादित्र कहले वाद्य बाजा युद्ध भूमि रे युद्ध क्षेत्र रे जो रण बाजा गुड़िक बाजे रण ध्वनि गुड़िक बाजे से गुड़िक से बाजा को कह बाद्रित शबदे शब्द रे कंपई अबनी अबनी है पृथ्वी पृथ्वीटा कंपी उठुची जो वीर ध्वनि रे वीर वाद्य मानक जो युद्धकालीन बाजा गुड़िक बाजुची वाद्य बाजुची तादर पृथ्वी पुणा हईचई हो जाऊे कंपन मान कर नदी गर्भ उठे शत प्रतिध्वनि आ नदी गर्भर उठे शत प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि कौन से स्थान में जिते शब्द को बाधा प्राप्त हो जो फेरी आसे साधारणतः खोला स्थान तुम इधर पहाड़ ऊपर उच्च जगह को पलैब या फिर खाली नदी पानी कूलवर्ती अंचल जिते आम गोटे कथा कहूआ यहाँ प्रतिध्वनित होता है आसिक तरंगायित है कि नुह कि पहाड़ तुम तुम ना डाक आरंभ पछपटू से नाटा मैंने रिफ्लेक्स ये आसुव ना कि शब्दटा प्रतिध्वनित हो आसुव ठीक सेमती पहाड़ उपर जमी शुभ सेमती खोला जगह नदी नदीर बहुत पानी अच्छी नदी कूल में डाकिले सेमती शुभा जाए प्रतिध्वनि हुए ये से जो शब्द गुड़िक कोलाहल गुड़िक नदी में जेहेतु संध्या समय हो गला लोक बाक जेझा बाटर जे धीरे धीरे निस्तब्ध हो आसूची तो तार शब्द प्रतिध्वनित हो आसूची बारंबार लाख बिंधुचंती कहीं योद्ध दल क्षणे क्षणे उठे हर्ष कोलाहल आम आगु पढ़ीचे कौन ना प्रथमे युद्ध शिविर वर्णना होपर सुंदरतार वर्णना हम युद्ध शिविर माने कौन किए तार बस युद्ध रेडी होची सकाळ पाइले युद्ध करिवो किए तार अस्त्र शस्त्र सजाड़ुची किए खंडा तरुआल धरची सूर्यंकर अस्तगामी सूर्यंकर किरण पड़ी तार अस्त्र शस्त्र चकचक कलानी तो पुणी शिविर गुड़ाक देखा जाउची को भली धड़ा रंगर पर्वत भली देखा जाए कौन लाख बिंधुचंती लाख बिंधिबा कहले लक्ष्य भेद करवा युद्ध पूर्वर जो मैं प्राक्टिस कर खंडा बुले बाले निजे केमी कौन प्रोटेक्ट कर निजक केमी शत्रु उपर बार कर प्राक्टिस कर लगी कह लाख बिंधुचंती कहले लक्ष्य भेद किए धनुषर धरिकी तीर भेद लक्ष्य भेद करुच्ची ठीक जगह मोर बाजू चिन्ह ना ये लक्ष्य बिंधुचंती कहीं योद्ध दल कहले योद्धा माने जो वीर पुरुष मैंने आसिचंती युद्ध करने योद्धा मैंने आसिचंती से माने युद्ध करने कि ना ता पूर्वर टिके रेडी होचंती बा टिके लक्ष्य भेद करुचंती निज अस्त्र शस्त्र क्षणे क्षणे उठे हर्ष कोलाहल आउ कौटी कौटी मुहूर्ते मुहूर्ते क्षणे क्षणे कहले टिके टिके समय अल्प अल्प समय मुहूर्त मुहूर्त कौन हर्ष कोलाहल हर्ष है आनंद कलरव घो घा हो उठुंट युद्ध माने आगुरी समर सज्जा चली एपटे से माने अभ्यास करुँच युद्धर खंडा तरुआल धरिकी मझे मझे टिके टिके कोलाहल शुभा जाए किसी दृश्यर वर्णना करिसेंती कविवर राधानाथ राय एति था आर क्लास रे विषय पढ़ेबा।